Hello students, welcome to our channel in English class of class 5th, chapter number 9, The Colors of Bharat. Chapter starts now. Bharat is a country with many states. Do you know any of these states other than Rajasthan? Write the names of any three of them along with what you know about those states. भारत एक ऐसा देश है जिसमें कई राज्य हैं। क्या आप राजस्थान के अलावा इन राज्यों में से किसी को जानते हैं? इन राज्यों में से किसी ने तीन के नाम उनके बारे में जो आप जानते हैं उसके साथ लिखिए। लेट अस एक्सप्लोर। भारत इज़ अ कंट्री विद मैनी स्टेट्स. डू यू नो एनी ऑफ दीज स्टेट्स अदर देन राजस्थान? राइट द नेम्स ऑफ एनी थ्री ऑफ देम अलॉन्ग विद व्हाट यू नो अबाउट दोज स्टेट्स. आंसर है मध्य प्रदेश. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया. क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है. महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ इंडियाज़ बिगेस्ट कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स. यह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और उद्योग का केंद्र है. उत्तर प्रदेश. इट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया. यह भारत का सबसे घनी आबादी वाला प्रदेश है. नाउ Madhopur is a small village in Rajasthan. The village is surrounded by the sand dunes of Thar Desert. The people of Madhopur live in colorful houses, wear bright clothes and celebrate festivals with great joy. The village is known for its beautiful handicrafts, including attractive mirror work, colorful pottery, and vibrant fabrics. One day, children gathered under a neem tree for a special class. Their teacher, Mrs. Sharma, travelled across Bharat and had many stories of its diverse culture to share. चलिए इसकी हिंदी देखते हैं. माधोपुर राजस्थान का एक छोटा सा गांव है. यह गांव थार रेगिस्तान के रेतीले टीलों से घिरा हुआ है. माधोपुर के लोग रंग बिरंगे घरों में रहते हैं, चमकीले कपड़े पहनते हैं और त्योहारों को सब बड़े उत्साह से मनाते हैं. यह गांव अपने खूबसूरत हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है, जिसमें आकर्षक शीशे की कारीगरी, रंग बिरंगे मिट्टी के बर्तन और चटकीले कपड़े शामिल हैं. एक दिन बच्चे एक नीम के पेड़ के नीचे एक विशेष कक्षा के लिए इकट्ठे हुए. उनकी शिक्षिका श्रीमती शर्मा पूरे भारत में घूम चुकी थीं. उनके पास देश की विविध संस्कृतियों की कई कहानियाँ थीं. टुडे वील एक्सप्लोर भारत डाइवर्सिटी थ्रू फेस्टिवल्स, फूड एंड ट्रेडिशंस. शी बिगैन. What makes our country unique? A little girl named Rani raised her hand. Bharat is special because we celebrate different festivals in different places. Exactly. Mrs. Sharma smiled. Festivals like Teej and Gangaur bring communities together with music and dance. Similarly, in Maharashtra, people celebrate Ganesh Utsav. In Punjab, people celebrate Vaisakhi, while in Kerala, Onam is a famous festival. Each student was feeling proud to be a Bharatiya, where they had various festivals to celebrate. Mahesh said, "Teacher, may I tell something?" Mrs. Sharma said, "Yes, Mahesh." He said, "People wear different clothes in different parts of the country." Absolutely, Mrs. Sharma replied. Let's start with our home, Rajasthan. Here some people design fabrics with mirror work. People wear colorful clothes. Women wear lehenga, kurti and bandhej dupattas, while the men wear dhoti and kurta. These clothes are not just for festival but for everyday life too. She continued. Students' eyes sparkled as Mrs. Sharma spoke. They remembered the colorful clothes they had at their home. Then Mrs. Sharma asked, "What do you know about the food of Rajasthan?" Raj shared, "We enjoy dal bati churma here. It's made with local grains and spices." Yes, and we love sabji of Kair Sangri as well, Mrs. Sharma added. देखिए हम इसे हिंदी में देखते हैं. आज हम त्योहारों, खान पान और परंपराओं के जरिए भारत की विविधता को देखेंगे. उन्होंने शुरुआत की. हमारे देश को क्या अनोखा बनाता है? रानी नाम की एक छोटी बच्ची ने हाथ उठाया. भारत इसलिए ख़ास है क्योंकि हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग त्यौहार मनाते हैं. बिल्कुल, श्रीमती शर्मा मुस्कुराई. तीज और गणगौर जैसे त्यौहार संगीत और नृत्य के जरिए समुदाय को साथ ले आते हैं.
इसी तरह महाराष्ट्र में लोग गणेश उत्सव मनाते हैं, पंजाब में लोग बैसाखी मनाते हैं, जबकि केरल में ओणम एक प्रसिद्ध त्यौहार है। हर छात्र भारतीय होने पर गर्व महसूस कर रहा था, जहां उनके पास मनाने के लिए कई त्यौहार थे। महेश ने कहा, गुरुजी, क्या मैं कुछ बता सकता हूँ? श्रीमती शर्मा ने कहा, हाँ महेश। उन्होंने कहा, देश के विभिन्न भागों में लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल, श्रीमती शर्मा ने जवाब दिया। शुरुआत अपने घर राजस्थान से करते हैं। यहाँ कुछ लोग शीशे के काम वाले कपड़े डिज़ाइन करते हैं। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। महिलाएं लहंगा, कुर्ती और बंदेज दुपट्टा पहनती हैं, जबकि पुरुष धोती और कुर्ता पहनते हैं। यह कपड़े सिर्फ त्योहारों के लिए ही नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए भी हैं। उन्होंने आगे कहा। श्रीमती शर्मा की बात सुनते ही छात्रों की आंखें चमक उठी। उन्हें अपने घर के रंग बिरंगे कपड़े याद आ गए। फिर श्रीमती शर्मा ने पूछा, आप राजस्थान के भोजन के बारे में क्या जानते हैं? राज ने बताया, हम यहाँ दाल बाटी चूरमा का आनंद लेते हैं। यह स्थानीय अनाज और मसालों से बनाया जाता है। हाँ, और हमें कैसांगरी की सब्जी भी तो बहुत पसंद है, श्रीमती शर्मा ने कहा। बट भारत फूड चेंजेस रीजनली। केरला लव्स राइस डिशेज लाइक appam. Coastal areas use coconut, and you must have heard of the famous सरसों का साग and मक्के की रोटी of Punjab. The children were amazed at how food varied across the country. They realized that while Rajasthan's food was spicy, other places and had their own delicious dishes too. Mrs. Sharma then took out a map of Bharat. Look at this map, she said. Bharat is not only diverse in food and clothing but also in languages. India has over 120 languages here. We speak Hindi and Rajasthani. In Karnataka, it's Kannada. In Nagaland, communities speak Ao or Angami and Nagamese. The children nodded, understanding that Bharat's strength lay in its diversity. Mrs. Sharma smiled and said, but the best part is that even though we speak different languages, wear different clothes and eat different food, we are all Bharatiya. We celebrate our differences, and that's what makes us strong. Just then, the school bell rang, signaling the end of the class, but Mrs. Sharma had one last thing to say. Remember, children, Bharat is a place where every culture, every language, and every tradition is like a color on a beautiful painting. Together, they make Bharat the most colorful country in the world. The children clapped and cheered. Sugna stood up and said, I am so proud to be from Rajasthan. I'll ask my cousin in Assam about Bihu festival traditions. Mrs. Sharma smiled and said, that's the spirit, Sugna. Let's keep learning about our diverse and colorful Bharat. And so the children of Madhupur learned that Bharat was not just a country, it was a beautiful mix of cultures, traditions and colors, all coming together to create a country like no other. हिंदी इस प्रकार है इसकी, लेकिन भारत का भोजन क्षेत्रीय रूप से बदलता रहता है। केरल में अप्पम जैसे चावल के व्यंजन पसंद किए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में नारियल का उपयोग होता है। और आपने पंजाब के प्रसिद्ध सरसों का साग और मक्के की रोटी के बारे में तो सुना ही होगा। बच्चे यह देखकर हैरान थे कि देश भर में खाने में कितनी विविधता है। उन्होंने देखा कि राजस्थान का खाना मसालेदार तो है ही, लेकिन दूसरी जगहों के भी अपने अपने लजीज व्यंजन हैं। फिर श्रीमती शर्मा ने भारत का नक्शा निकाला। इस नक्शे को देखिए, उन्होंने कहा, भारत न केवल खान पान और पहनावे में बल्कि भाषाओं में भी विविधतापूर्ण है। भारत में 120 से ज़्यादा भाषाएं हैं। यहाँ हम हिंदी और राजस्थानी बोलते हैं। कर्नाटक में कन्नड़, नागालैंड में लोग आओ या अंगामी और नागामी बोलते हैं। बच्चों ने सिर हिलाया और समझा कि भारत की ताकत उसकी विविधता में निहित है। श्रीमती शर्मा मुस्कुराई और बोली, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भले ही हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं और अलग अलग खाना खाते हैं, फिर भी हम सब भारतीय हैं। हम अपनी विविधताओं का जश्न मनाते हैं और यही हमें मजबूत बनाता है। तभी स्कूल की घंटी बजी, जो कक्षा समाप्ति का संकेत थी। लेकिन श्रीमती शर्मा को एक आखिरी बात कहनी थी। याद रखना बच्चों, भारत एक ऐसी जगह है जहाँ हर संस्कृति, हर भाषा और हर परंपरा एक खूबसूरत पेंटिंग पर रंग की तरह है। ये सब मिलकर भारत को दुनिया का सबसे रंगीन देश बनाते हैं। बच्चों ने तालियां बजाई और खुशी मनाई। सुगना खड़ी हुई और बोली, मुझे राजस्थान से होने पर बहुत गर्व है। मैं असम में मेरे चचेरे भाई से बिहू त्यौहार की परंपराओं के बारे में पूछूंगी। श्रीमती शर्मा मुस्कुराई और बोली, यही तो भावना है सुगना।
आइए अपने विविधतापूर्ण और रंग बिरंगे भारत के बारे में सीखते रहें। और इस प्रकार माधोपुर के बच्चों ने सीखा कि भारत सिर्फ एक देश नहीं है, यह संस्कृति और परंपराओं और रंगों का एक सुंदर मिश्रण है जो सभी मिलकर एक अद्वितीय देश का निर्माण करते हैं। नाउ वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। विलेज यानी कि गांव, सराउंडेड यानी कि घिरा हुआ, कलरफुल मीनिंग्स रंग बिरंगे, वियर यानी पहनते हैं, सेलिब्रेट यानी कि मनाना, फेस्टिवल्स यानी त्यौहार, हैंडीक्राफ्ट्स यानी हस्तशिल्प, पॉटरी की मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, वाइब्रेंट का मतलब होता है चटकीले रंग, फैब्रिक्स का मतलब होता है पोशाकें, गैदर्ड यानी इकट्ठा हुए, ट्रैवल्ड यानी यात्रा की, डाइवर्स यानी विविध, कल्चर यानी संस्कृति, एक्सप्लोर यानी कि जानना या खोज करना, डाइवर्सिटी यानी विविधता, ट्रेडिशंस यानी परंपराएं, यूनिक यानी अनोखा, कम्युनिटीज़ यानी कि समुदाय, फेमस यानी कि प्रसिद्ध, प्राउड यानी कि गर्वित, वेरियस यानी कि अनेक, सेड यानी कि कहा या बताया, डिफरेंट यानी अलग या भिन्न, पार्ट्स हिस्से, कंट्री देश, एब्सोल्युटली बिल्कुल, डिज़ाइन का मतलब होता है डिज़ाइन करना या बनाना, मिरर वर्क का मतलब होता है शीशे का काम, कलरफुल का मतलब होता है रंग बिरंगे, क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े, एवरीडे का मतलब होता है रोज़मर्रा या प्रतिदिन, स्पार्कल यानी कि चमके, रिमेंबर यानी कि याद किया, इंजॉय यानी कि आनंद लेना, स्पाइसेस यानी कि मसाले, चेंजेस यानी कि बदलता है, रीजनली यानी क्षेत्रवार, कोस्टल यानी कि तटीय, स्पाइसी यानी कि मसालेदार, डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट, मैप का नक्शा, डाइवर्स का विविध, क्लोथिंग का कपड़े, लैंग्वेजेस का भाषाएं, कम्युनिटीज़ का समुदाय, नॉडेड यानी कि सिर हिलाया, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, द बेस्ट पार्ट इसका मतलब होता है सबसे अच्छी बात, डिफरेंसेस यानी कि भिन्नताएं, सेलिब्रेट जश्न मनाना, सिग्नलिंग संकेत देते हुए, कल्चर संस्कृति, लैंग्वेज भाषा, ट्रेडिशन परंपरा, कलर रंग, पेंटिंग चित्रकला, क्लैप्ड ताली बजाई, चीयर्ड खुशी मनाई, प्राउड गर्वित, स्पिरिट सही भावना, डाइवर्स विविध, मिक्स मिश्रण। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। हैंडीक्राफ्ट मीनिंग इट आइटम्स मेड बाय हैंड यानी कि हस्तशिल्प। सेंटेंस द मार्केट वॉज फुल ऑफ ब्यूटिफुल हैंडीक्राफ्ट्स मेड बाय लोकल आर्टिस्ट। वाइब्रेंट मीनिंग फुल ऑफ लाइफ, एनर्जी और कलर। सेंटेंस द फेस्टिवल हैड अ वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर विद म्यूजिक एंड डांस। डाइवर्स मीनिंग showing a lot of variety. Sentence India has a diverse culture with many languages and traditions. Explore meaning to travel or look around to learn more about something. Sentence we decided to explore the old fort during our vacation. Unique meaning one of a kind. Sentence each handmade item in the shop was यूनिक एंड स्पेशल। कम्युनिटीज़ मीनिंग होगा ग्रुप्स ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर और हैविंग शेयर्ड इंटरेस्ट। सेंटेंस डिफरेंट कम्युनिटीज़ केम टुगेदर टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल। फैब्रिक्स मीनिंग है क्लोथ। सेंटेंस द शॉपकीपर शोड अस मैनी कलरफुल फैब्रिक्स फॉर द ड्रेस। स्पार्कल्ड मीनिंग shined with bright flashing light. Its sentences like sentence है her eyes sparkled with joy when she saw her gift. Coastal it means related to or near the sea or coast. Sentence we visited a beautiful coastal village during the holidays. Next है select correct option for the following questions. What was the name of the village Rani lived in? Madhupur. What festival is celebrated in Maharashtra? Ganesh Utsav. Which festivals of Rajasthan are known for music and dance? Teej and Gangaur. Where is Onam celebrated in Kerala? Match the states with their culture or tradition. Rajasthan
celebrates Gangor? First answer C. Kerala celebrates Onam. So second answers A. Third, Punjab answers B, because Punjab practices Bhangra. Next question is, answer the following. What is Madhopur known for? Answer begins. Madhopur is known for its beautiful handicrafts. Next question. Which traditional food of Rajasthan is mentioned in the lesson? The answer is, the traditional food of Rajasthan mentioned in the lesson is dal bati churma. Next question. How many languages are spoken in Bharat? The answer is, more than 120 languages are spoken in Bharat. Group task, cultural exchange fair. Step 1. Each student research on one state: Kerala, Punjab, Bengal. Step 2. Prepare 4 sentences in English plus home language about traditional dress, festival, food. Step 3. Role play as a tourist guide using polite phrases. May I tell you about Kerala's Onam festival? Excuse me, would you like to try virtual makki di roti? So our first task is research on one state. Each student research one state. Example: Kerala, Punjab, Bengal. So do this to yourself. You can research on Kerala or Punjab or Bengal. यह क्वेश्चन आप सभी को, स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से करना है. आप अपनी किसी भी स्टेट के बारे में, जिसके बारे में आप जानना पसंद करते हैं, आप रिसर्च कीजिए और लिखिए. नेक्स्ट है, प्रिपेयर 4 sentences in English plus home language. Traditional dress. English. The traditional dress of Punjab includes kurta pajama for men and salwar kameez with dupatta for women. पंजाब की पारंपरिक पोशाक में पुरुष कुर्ता पायजामा और महिलाएं सलवार कमीज या दुपट्टा पहनती हैं. फेस्टिवल. In English, one of the most famous festivals of Punjab is बैसाखी, विच मार्क्स द हार्वेस्ट सीजन. होम लैंग्वेज यानी कि पंजाबी में से लिखेंगे. पंजाब का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी है, जो फसल कटाई के समय मनाया जाता है. फूड. इन इंग्लिश वील राइट, पीपल इन पंजाब लव टू ईट मक्की दी रोटी एंड सरसों का साग. पंजाबी में लिखेंगे, पंजाब में लोग मक्के की रोटी और सरसों का साग खाना बहुत पसंद करते हैं. नाउ Step 3. Role play as a tourist guide using polite phrases. Like, may I tell you about the colorful festival of Baisakhi celebrated in Punjab? पंजाबी में, क्या मैं आपको पंजाब में मनाए जाने वाले रंग बिरंगे बैसाखी त्योहारों के बारे में बता सकती हूँ. नेक्स्ट, एक्सक्यूज़ मी, वुड यू लाइक टू ट्राई अप्पम? इन हिंदी, माफ़ कीजिएगा, क्या आप अप्पम खाना चाहेंगे? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है. होपफुली आप सभी को पसंद आया होगा वीडियो. हमसे जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.